हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे डीएनबिस नॉलेज हब पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड के आईपीओ के रिव्यूज और एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आईपीओ के डिटेल्स। आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो है 28 जुलाई 2021। आईपीओ के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 30 जुलाई 2021। ये आईपीओ जो है वो बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू पर शेयर जो है वो है 10। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है वो है 880 टू 900 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो 16 शेयर्स रहेंगे। मिनिमम लॉट आप एक का अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर 16 शेयर्स रहेंगे और उसकी वैल्यू होगी 14,400। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो वो होंगे 13 जिसके अंदर 208 शेयर्स होंगे और जिसका अमाउंट होगा 1,87,200। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी के बारे में। रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली रोलेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए पार्टनरशिप फर्म। ये जो पार्टनरशिप फर्म थी वो इनकॉर्पोरेट की थी उनके दो प्रमोटर्स ने, मिस्टर रुपेश दयाशंकर मडेगा एंड मनीष दयाशंकर मडेगा, इन द ईयर 1977-78 इन राजकोट। ये जो पार्टनरशिप फर्म थी दैट इज रोलेक्स इंडस्ट्रीज, वो कन्वर्ट कर दी गई रोलेक्स रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में इन द ईयर 2003। रोलेक्स ने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी विथ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स फॉर बॉल बेयरिंग, tapered, cylindrical, railway bearing components, spacers with additional operations like drilling, milling and marking. अब जो हमारी कंपनी का फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट जो है वो यूज होता है एज एन एप्लीकेशन इन टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इंडस्ट्रियल्स, रेलवेज, ऑफ हाईवेज, अर्थ मूविंग, विंड मिल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, डिफेंस, पावर, एरोस्पेस, marine oil and natural gas. As on the date of filing of RHP, company is having 3 manufacturing units in the city of Rajkot. अब कंपनी की अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करते हैं तो कंपनी हैव 22 forging lines with a combined installed capacity of 1,44,750 MTPA. Machining facilities consisting of 528 spindles with a combined installed capacity of 69 million parts per annum, and other machinery including heat treatment furnaces, cold rolling machines and other infrastructure. अब फ्रेंड्स जानते हैं समरी ऑफ बिजनेस। कंपनी जिस बिजनेस के अंदर है, जो ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है, उसके समरीज। Company is one of the top forgings companies in India and manufacturer and global supplier of hot rolled forged and machined bearing rings and automotive components for segment of vehicles including passenger vehicles, commercial vehicles, two-wheeler vehicles and off-highway vehicles and electric vehicles. It's supplied domestically and internationally to large market customers, including some of the leading bearing manufacturing companies, Tier 1 suppliers to global auto companies and auto OEMs. Company is one of the key manufacturers of bearing rings in India and it caters to most of the leading bearing companies in India. अब फ्रेंड्स देखते हैं समरी ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी हमारी ऑपरेट कर रही है। द इंडियन बेयरिंग मार्केट इज एस्टिमेटेड एट 12,000 crore and it constitutes less than 4% of global bearing demand. In terms of consumption, about 60% requirement is met through domestic production while the remaining is met through the imports. Bearing rings from one of the most critical and largest raw material cost for bearing sector, and at 2200 crore the industry contributes 18.3% of size of domestic bearing market. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स किसको सर्व करती है। फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हाईली डिपेंडेंट है कंपनी के टॉप
10 कस्टमर्स पे। अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो इन फाइनेंशियल ईयर 2021, 2020 एंड 2019 इन टॉप 10 कस्टमर्स ने कंपनी को 72.62%, 76.94% और 65.56% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। In financial year 2021, company has supplied bearing rings and automotive components to over 60 customers in 17 countries, which are preliminarily located in India, United States of America, and European countries such as Germany, France, Italy, and Czech Republic, and Thailand. Notably, companies supply domestically and internationally to some of the leading manufacturers of bearing, Tier 1 and Tier 2 auto component suppliers and certain auto OEMs. ऑन एन एवरेज देखें तो 70% ऑफ लार्जेस्ट कस्टमर्स जो हैं उनसे ऑलमोस्ट डिकेड से ज़्यादा एसोसिएशन कंपनी का देखा जा सकता है। अब टॉप क्लाइंट नेम जो है वो इंक्लूड करते हैं जीएम, एलिसन ट्रांसमिशन, जेके एंड ड्राइवलाइन, एनबीसी फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, फोर्ड, नॉर ब्रैमसी, लैंडमार्क, आईसीएसए, मैग्ना गेट्रिक, फ्लोरिका, टिमकिन, NRB bearings, Getrag for transmission, Magneti Marley, NTN SNR, ILJIN, Automotive Alex Limited, RSB, Sechifar, and ABC Bearings Limited, Tototech, Carraro Group, SKF, Nachi, Voso India, ETN, NTN, RBC Bearings. चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। हम जो ऑफर ला रहे हैं, कंपनी जो ऑफर ला रही है, उनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो कंपनी ने स्पेसिफाई किया है देयर विल बी टू थिंग, दैट इज ऑफर फॉर सेल, दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका एक तो प्रपोर्शन रहेगा और एक रहेगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रेश इश्यू। The proceeds from the offer for sale shall be received by the selling shareholder, and our company, that is Rolex Rings Limited, shall not receive any proceeds from the offer for sale. अगर हम फ्रेश इश्यू की बात करते हैं तो कंपनी ने दो पर्पसेस बताए हैं कि इनके अंदर ये प्रोसीड्स जो है वो यूज होंगे। दैट इज फर्स्ट, फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हम फर्स्ट चीज देख रहे हैं वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो है 5 crore 60 lakhs इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर यही हम एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू पे देखते हैं तो इट इज 5600 lakhs। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है इसके अंदर तीन चीजें इंक्लूड हो रही है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, OCR प्रेफरेंस शेयर्स, NCR प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 crore 50 lakh 25,000, OCR preference shares are 50 lakhs and NCR preference shares are 1 crore 59 lakh 75,000। अगर हम इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं, दैट इज बिफोर दिस ऑफर इट इज 4 crore 2 lakh 16,953 नंबर ऑफ शेयर्स, और यही बात अगर हम एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू पे देखते हैं तो इट इज 40 crore 21 lakh 69,530। इसमें से इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल में से इक्विटी शेयर कैपिटल का जो प्रपोर्शन है वो है 2 crore 66 lakhs 11,090 नंबर ऑफ शेयर्स एंड NCR प्रेफरेंस शेयर्स आर 1 crore 36 lakh 5,863। अब फ्रेंड्स देखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो स्टैंड कर रहा है 162 crore 61 lakh 41,684 पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्री ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप एंड सेलिंग शेयर होल्डर। मीन्स इस ऑफर से पहले प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप और सेलिंग शेयर होल्डर कितना होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर्स आर होल्डिंग 48.80% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग,
प्रमोटर ग्रुप जो है वो होल्ड कर रहा है 10.18%। हमारा जो सेलिंग शेयर होल्डर है जो कि है रिविंडल पीई एलएलसी, वो होल्ड कर रहे हैं 41.01%। अब फ्रेंड्स देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर टोटल असेट्स जो है एज ऑन 31st मार्च 2021 स्टैंड्स एट 7,969.24, जो कि था 6,861.73 एज ऑन 31st मार्च 2020 एंड 7,822.57 as on 31st March 2019। नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो है 4,182.95 as on 31st March 2021, 3,932.15 as on 31st March 2020 and 4,142.25 as on 31st March 2019। टोटल इक्विटी दैट इज आवर शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटीज वो है हमारा 3,567.33 as on 31st March 2021, 2,681.05 as on 31st March 2020 and 2,153.44 as on 31st March 2019। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो है 6,197.57 as on 31st March 2021, 6,753.32 as on 31st March 2020 and 9,112.54 as on 31st March 2019। टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 31st मार्च 2021 को ये था 56.12% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 53.82% ऑफ टोटल रेवेन्यू as on 31st March 2020 and 56.27% of total revenue as on 31st March 2019। अब अगर हम दो मेजर कंपोनेंट्स जो है जो कंपनी सेल कर रही है वो अगर हम देखते हैं तो वो है बैरिंग रिंग्स और ऑटो कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर बैरिंग रिंग्स जो है उसका टोटल रेवेन्यू के अंदर जो प्रपोर्शन है वो है 3,309.65 एज ऑन 31st मार्च 2021, 3,498.15 as on 31st March 2020 and 5,345.34 as on 31st March 2019। ऑटो कंपोनेंट का जो पोर्शन है वो है 2,373.65 as on 31st March 2021, 2,660.78 as on 31st March 2020 and 2,944.13 as on 31st March 2019। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वो है 590.41 as on 31st March 2019, which was 529.41 as on 31st March 2020 and it increased to 659.55 as on 31st March 2021। फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इट वाज 1938.05 एज ऑन 31st March 2019, which reduced to 1837.77 as on 31st March 2020, but it further reduced to 592.14 as on 31st March 2021। अगर हम ये मूवमेंट देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। तो इसका रीजन ये है कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है कंपनी के वो इंक्रीज हुए 417.85 से, इन्वेंट्रीज जो है वो इंक्रीज हो रही है 405.01 से और अदर करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 74.70 से। इन सारे इंक्रीजेस की वजह से इन सारे इंक्रीज इन ट्रेड करंट एसेट्स की वजह से ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आ रहा है उसके अंदर रिडक्शन जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम यही बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से तो आप इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों साल के अंदर दैट इज इन द ईयर 2019, 2020 एंड 2021 there is a negative cash flow, that is 363.49 in 2019, 141.70 in 2020 and 363.08 in 2021।
2021। अभी इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न यही है कि कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर परचेज किया है, इन्वेस्ट किया है, मार्जिन मनी डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट किया है। मतलब हमारे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का जो आउटफ्लो है वो बढ़ गया, लेकिन विज़िबल एसेट्स जो है वो भी तो इंक्रीज हो रही है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर देखते हैं तो वो भी माइनस में जा रही है। एज ऑन 31st March 2019 इट इज 1580.12, 1685 in 2020 एंड 195.39 in 2021। अब उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि कंपनी ने अपनी कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो रीपे की है और कुछ अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है वो पे की है, और जो इन्होंने बोरोइंग्स किया है या ये जो लाइबिलिटीज़ है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो पे किया है। इसी रीज़न से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 36.26 पर शेयर एज ऑन 31st March 2021, 22.08 in 2020 एंड 24.62 in 2019। डाइल्यूटेड ईपीएस अगर देखें तो इट इज 35.96 per share in 2021, 22.08 in 2020 and 24.62 in 2019। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो वो है 24.38% इन 2021, 19.75% इन 2020, 27.42% इन 2019। नेटवर्थ अगर हम देखते हैं तो इट इज 3567.33 एज ऑन 31st March 2021, which was 2681.05 as on 31st March 2020 and 2153.44 as on 31st March 2019। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 148.76 as on 31st March 2021, 111.80 as on 31st March 2020 and 89.80 as on 31st March 2019। अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो it was 1.79 times as on 31st March 2019, which reduced to 0.97 times in 31st March 2020 and 0.70 times on 2021। फ्रेंड्स अब देखते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के बारे में। ऐसी लाइबिलिटीज जो कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड तो नहीं किए, लेकिन इन फ्यूचर सर्टेनिटी है कि हाँ ये लाइबिलिटीज भी आ सकती है। तो इसके अंदर कंपनी ने 3 कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज जो है वो डिस्क्लोज की है। और वो कौन कौन सी है? वो है इनकम टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू डिसअलाउंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, फॉरेक्स लॉसेस, फॉरेन कमीशन एंड अदर एक्सपेंडिचर फॉर द असेसमेंट ईयर्स 2005-06 to 2017-18। ये अमाउंट करता है 138.73 मिलियंस को। सेकेंड चीज जो है वो है फॉर नॉन रिसिट ऑफ रिक्वायर्ड forms and non-acceptance of company's claim of certain sales as an exempted sales and related matter 0.25 million amount कर रहा है वो। और service tax with respect to the matters decided against the company and respect of which the company has filed appeal with higher authorities, it includes the amount of 1.41 millions। फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। वी होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू टू डिसाइड क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे या आपको किसी भी तरीके से यूजफुल रहे हों तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।